Hello and a very warm welcome. You're watching the Young India debate. This is going to be an epic face-off because I'm joined on India Today at this time by the two young faces of the right and the left. Joining us on India Today at this time from Bengaluru South, the Bharatiya Janata Party's youngest candidate in the battle for 2019, Tejaswi Surya. Squaring off against him, the young man who's emerged as the face of the opposition, CPI candidate in Begusarai, former Jawaharlal Nehru University Students' Union President Kanhaiya Kumar. Welcome to both our panelists who are joining us in this big Young India debate. Three questions coming up over the next 45 minutes. Question number one. Is the battle for 2019 really a battle between a stable government led by Narendra Modi on the one side versus a coalition government which is a hodgepodge Maha-Milawat coalition on the other side? You've got Narendra Modi. On the other side, you're not certain who you've got. So let me put that question first to Kanhaiya Kumar in Begusarai, because the Prime Minister says, Kanhaiya, on the one side there is Narendra Modi, on the other side there is no one. There is a Maha-Milawat coalition, there is no one face. On the one side there is clarity, there is stability, on the other side there is chaos. क्या आपको लगता है कि यंग इंडिया को इस चुनाव में यह तय करना है कि उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए या एक महामिलावट सरकार चाहिए जिसका कोई एक चेहरा नहीं है, जिसको चलाने में बहुत दिक्कत होने वाली है? कन्हैया कुमार, ओपनिंग कमेंट्स। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने कहा है कि ये यंग इंडिया डिबेट है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, हर पांचवा यूथ दुनिया का इंडियन है। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि राइट वर्सेस रॉन्ग का डिबेट या राइट वर्सेस कोई भी तरीके का जब हम डिबेट पुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम राइट वर्सेस लेफ़्ट का डिबेट करें या हम राइट वर्सेस महागठबंधन का डिबेट करें या हम मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी का डिबेट करें, हम समझते हैं कि हम बेसिक इशूज़ को मिस कर रहे हैं। आज के डेट में अगर कोई बहस होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि एक तरफ सरकार का झूठा वादा है, विकास का एक ऐसा सपना जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ 45 साल में 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इमर्ज किया है और सबसे ज़्यादा यूथ आज के डेट में बेरोज़गार हैं। तो मैं समझता हूँ कि जुमला वर्सेस बेरोज़गार ये बहस होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जो ये नैरेटिव हम लोग बना रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी महागठबंधन में है। सरकार सिर्फ बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार है और उसमें भी अलग अलग पार्टियों का गठबंधन हुआ है। हम समझते हैं कि ये राइट ट्रैक नहीं है डिबेट का। आज के डेट में अगर राइट ट्रैक डिबेट का कुछ हो सकता है तो वो है इस देश में जो जुमलेबाजी की गई है और जनता के जो रियल इशूज़ हैं। जहाँ तक फेस का सवाल है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, देश में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों का कोई एक फेस नहीं होता है। और आज अगर हम फेस को लेकर के डिबेट करेंगे तो एक तरफ मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा है जिस पे करोड़ों रुपया उनके फेशियल पे खर्च किया जाता है, दूसरी तरफ इस देश की गरीब जनता करोड़ों लोग हैं। इसीलिए ये जो बहस है वो असल में मोदी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया का है। Rich versus poor, Modi versus the people. It's not a debate between stability and chaos, Tejaswi Surya. It's a debate between jumlas and unemployment. That's the opening salvo coming from Kanhaiya Kumar. We go to Bengaluru South. The youngest BJP candidate in this election now needs to counter Kanhaiya Kumar. Tejaswi, opening comments. Rahul, the last 5 years, at the very outset, Rahul, I would want to use this opportunity to congratulate Kanhaiya on his candidature, and I wish him the very best. Irrespective of our ideological differences, I think
young people in politics will bring in a new set of ideas and fresh energy. So I would like to use this opportunity to congratulate him and wish him the best. Rahul, the last 5 years, the country has seen a tectonic shift in the political discourse and the way governance is approached. Narendra Modi's government has delivered on its promise of good governance, of stable government, and a sensitive government, which has catered to the last man in the line. It has succeeded in issues of foreign policy, defense, national security, providing the most necessary infrastructural needs for the poorest of the poor in the country. It has greatly formalized a very inorganic and informal economy. It has the macroeconomic stability of the country is far higher than what it was 5 years ago. The opposition may claim that the issue of berozgar or unemployment is extremely high, but the fact of the matter is that the last 5 years has seen the highest amount of public employment generated because of the amount of infrastructure, public infrastructure that was created. The amount of money that was given by way of mudra loans crosses more than 16 lakh crores. The amount of public infrastructure works, especially related to say Swachh Bharat, the ports, the road constructions, the railway constructions, have created a lot many jobs. Digitization of the economy also has created lot many economic and employment, self-employment opportunities. India's economy is growing at the fastest pace. The approach of the government has been not to redistribute poverty, but to create prosperity and make India a rich country. A philosophy which Kanhaiya's party does not agree, because Kanhaiya's party wants to keep people of India poor and redistribute poverty, because communism thrives on keeping people poor and pitting one class of people against the other. Whereas the Narendra Modi government, instead of pitting one class of people against the other, has brought in a harmonious attempt at bringing together the society. An example to that being the Ujjwala Yojana subsidy, where the rich or the upper class people gave up their subsidies willingly so that the same money could be used to uplift or give additional benefits to the more poorer people. This is the approach of the government: inclusive development, development for all, development at a fast pace, and development at a large scale. And I think India has never witnessed a better governance model ever in its history than what Narendra Modi has delivered in the last 5 years. Kanhaiya Kumar, which is precisely why the people of this country have already decided that the next 5 years will also be with Narendra Modi. The problem with the communists is they want to keep the poor poor, because that's how communism stays in vogue. He says we've got mudra loans. He counts how they worked on defense, national security, foreign policy, formalizing the economy, creating public infrastructure, digitization. And India is now the world's fastest growing economy, leaving China behind in its wake. Kanhaiya Kumar. सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी तेजस्वी जी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में जब वो जा रहे हैं तो वो सारे पुराने पॉलिटिकल नैरेटिव को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो यंग हैं और आज यूथ का जो प्रॉब्लम है उसको वो प्रायोरिटी पे देखेंगे। जहाँ तक ग्रोथ का बात है, रघुराम राजन जी ने कहा है कि 7% ग्रोथ जो दिखाया जा रहा है ये झूठ है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम इकॉनमी में क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, स्पेशली जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में जो छोटे किस्म के उद्योग धंधे हैं वो बंद हुए हैं, और जो बेकारी का बेरोज़गारी का डेटा है वो कहता है कि 45 इयर्स में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। और जहाँ तक ये योजनाओं का ये कारनामा गिना रहे हैं, उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन लिया वो दोबारा उसको रिफ़िल कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक तो गैस कनेक्शन लेने के बाद जो उसको रिफ़िल कराने का कॉस्ट है वो 1000 से ज़्यादा हो चुका है। दूसरा ये है कि जो कही गई कि आपको मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, उसकी रियलिटी ये है कि उसमें जो गैस कनेक्शन का दाम है, जितनी बार आप रिफ़िल कराने के लिए जाएंगे आपको इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा देना पड़ेगा।
जहाँ तक ये आंकड़ा गिना रहे हैं कि इतना लोन दिया गया है, तो लोन जब दिया गया, इकॉनमी में जब पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो जॉब क्रिएट क्यों नहीं हुआ है? यही बात रघुराम राजन भी बोल रहे हैं कि ये 7% का ग्रोथ जो है वो गलत तरीके से पुश किया जा रहा है। दूसरी जहाँ तक बात है जॉब क्रिएट करने की, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो क्रिएट नहीं ही किए हैं, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेटा बताता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसी है वो 27 लाख पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं, और उस पर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं हुई है। और जो वैकेंसी का प्रोसेस शुरू होता है उसकी हालत ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी को उठा करके देख लीजिए। राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हैं, अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के सड़कों पर पूरे देश से नौजवान इकट्ठा हुए थे क्योंकि एसएससी का पेपर लीक हुआ था। अभी तक उस मामले का कोई निपटारा नहीं किया गया है। एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है, वैकेंसी जब निकलती है तो एग्जामिनेशन से पहले उसका क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है, और फाइनली वो वैकेंसी हो ही नहीं पाती है, लोगों को बहाल ही नहीं कराया जाता है। ये जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके अपनी पीठ खुद ही थपथपाने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, मैं समझता हूँ कि ये देश की जनता को अंधेरे में रखने वाली बात है। कोई एक योजना आप हमको बता दीजिए, चाहे स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात हो। स्किल इंडिया प्रोग्राम में जो हमारे पास डेटा है कि 70,000 लोग स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ट्रेंड किए गए, उसमें से 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। स्वच्छ भारत अभियान की हालत ये है कि जो लोग आज सफाई करने वाले हैं उनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाता है, और अक्सर आपको न्यूज आती होगी कि गटर में उतरने से लोगों की मौत हो जा रही है। दिल्ली जैसे शहर में 9 लोग गटर में उतरने से कुछ दिन पहले मर गए थे। ये जो एक सपना सिर्फ दिखाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी रियलिटी कुछ और है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप डेटा उठा करके देख लीजिए, उसका जो टोटल अमाउंट सैंक्शन हुआ है उसका 51% सिर्फ मोदी जी का फोटो लगाने में खर्च किया गया है। अगर उसी पैसे का इस महिलाओं के लिए कोई स्कूल खोला जाता, कॉलेज खोला जाता, अगर महिलाओं को लोन दिया जाता, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोई पॉलिसी लाई जाती, तो इस योजना की सफलता मानी जाती। मैं समझता हूं कि यह सरकार ये कर रही है कि अच्छे अच्छे वादे कर रही है। जब सरकार विपक्ष में थी तब भी वादे कर रही थी, अब जब सरकार बन गया है तब भी सरकार वादे कर रही है। और जो डेडलाइन होना चाहिए, आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी योजना का डेडलाइन 2019 में ख़त्म नहीं हो रहा है। सारी योजनाओं का, ज़्यादातर योजनाओं का डेडलाइन 2022 में ख़त्म हो रहा है या 2024 के बाद ख़त्म हो रहा है। और ये जो सारी बातें बोली गई हैं, जितनी योजना उन्होंने गिनाया है, ग्राउंड पे जाकर के उन योजनाओं को आप देख लीजिए। डेटा बता रहा है कि भारत में पिछले 5 सालों में लोगों का इनकम कम हुआ है। और जो कुछ सर्टेन कॉरपोरेट घराने हैं उनका इनकम सिर्फ बढ़ा है। मतलब जो पुअर हैं वो पुअरर होते जा रहे हैं, और जो रिचेस्ट हैं, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिचेस्ट लोग हैं उनका जो इनकम है उसमें कई गुना मुनाफा हुआ है। एक और डेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 545 सांसद हैं उसमें से 150 सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दुगुनी हो गई है, और जो जनता है उसकी संपत्ति घट गई है। आप रूरल इंडिया की हालत जाकर के देख लीजिए, हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान को बीमा देने वाली जो कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट इस मॉडल पे काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। Privatization of profit, socialization of loss, inequity going up. Economists like Raghuram Rajan questioning the GDP data. You say India is the fastest growing economy, Tejasvi, but a lot of global economists now say they have doubts about whether that data is correct. Kanhaiya Kumar alleges you are faking the figures to congratulate yourself. Tejasvi Surya of the BJP. Rahul, the leftists have a very unique problem. And that problem is that when certain data points does not suit them, they then start questioning the institutions and the credibility of the economists or whoever gives those data points. But these very same people quote the very same institutions in another manner, at another instance, when those data points will suit their argument. This has perpetually been the intellectual gymnastics the leftists always resort to. If today Raghuram Rajan and his arguments are in their favor, Raghuram Rajan becomes their darling.
Tomorrow, if Raghuram Rajan issues a statement saying the Modi government is doing a terrific job, then Raghuram Rajan is ditched. So this is how the leftist narrative always, works. Now the International Monetary Fund, the World Bank, the ADB, most of the international agencies repeatedly hold that India is now the world's fastest growing large economy. The largest number of people who have come out of the poverty line in the poverty line have come out under the last 5 years of the Narendra Modi government. Every minute, and the last 5 years, India has also witnessed an increase in per capita income of the average Indian by a whopping 45%. So, Kanhaiya Kumar, true to his communist ideology, is painting a very pessimistic image of India. Whereas I, who belongs to the Bharatiya Janata Party, is painting the image of an aspirational young India, who is looking at things in a very positive manner, whose future is looking more hopeful, whose future promises a better standard of living, whose future holds and promises more prosperity for the people, better access to resources, and more inclusive and equitable growth. And this precisely has been the approach of the Narendra Modi government towards all aspects of governance and public delivery in the last 5 years. This is turning out to If be a unemployment was fascinating as high as debate. what Kanhaiya claims to be, wouldn't there be social unrest in the state, in the society? The society is calm, people are happy. It looks like only a few people who are now out of power are the only jobless and the unhappy people. This is turning out to be a fascinating debate. We want you to tweet to us, write to us on Facebook, tell us what you think of it. I want to come now to the big nationalism debate, because Surya has strong views on that. Kanhaiya has equally strong, if not stronger, views on that. What matters more for young India, nationalism or jobs? And I want to put that question first to Tejaswi Surya, because young India wants jobs. You counted as your achievements national security, foreign policy, Balakot, an aggressive macho India, but young India wants job. Now what is more important in your view, nationalism or jobs? You call Kanhaiya Kumar anti-national, but the youth of Begusarai will say Rahul, that doesn't matter, what matters is jobs. Tejaswi Surya goes first. Rahul, I think you are restricting the idea of nationalism to a very narrow concept and kind of treating it like a very rhetorical jingoism. Nationalism is pride towards the country. Nationalism is an idea of having a very strong and prosperous country, a secure country, a credible government which leads the country. Now, nationalism minus jobs is not a concept. If the country is poor, then you can't, and you cannot expect a country to be strong, nationalism to be brimming if you are a poor country. If you are a poor country, the country will be witnessing strife, it will be witnessing social ills. So ensuring there is a prosperous society is a part of the debate on nationalism. And this government under Narendra Modi in the last 5 years, apart from our phenomenal success in foreign policy, defense and national security, has delivered the best results in ensuring the most amount of job creation, most amount of prosperity creation, the largest strides taken in formalizing of the economy, and laying the foundation for a modern economy so that India can catapult into a status of the truly modern, global, large-scale 21st century economy. Okay. If it was not for this government, and if the kind of government that we had witnessed under UPA 1, which was supported by outside on a crutch by the communists, was the kind of a Khichdi government that the Mahagathbandhan now promises. If that was the government that was ruling India for the last 5 years, Rahul, be rest assured that we would have seen a very different situation where India would have taken the shape of a North Korea or a Venezuela. Okay, let Kanhaiya Kumar respond to this. पुराना इंडिया वो था जहां पे आईएसआई आतंकवादी भेजता था, मुंबई में 200 लोग मरते थे और हिंदुस्तान के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे. नया इंडिया वो है जिसमें जब अटैक होता है
तो मोदी सरकार अपनी सेना को भेजती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। तेजस्वी का कहना है कि ये है नया इंडिया और ये है ताकत जो नरेंद्र मोदी को ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की रखी है। कन्हैया कुमार। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे सवालों का या जो पॉइंट हम रेज कर रहे हैं उसका जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की बात करें। पॉइंटेड करके हमने सवाल पूछा कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, 27 लाख पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं, उस पर उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। जो वैकेंसी निकली है उसमें जो पेपर लीक हुआ है उस पर उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। जिस तरीके से आज पब्लिक सेक्टर को बर्बाद किया गया है, आप देखिए, अगर हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो BSNL एक सरकारी कंपनी है और उसकी स्थिति ये थी कि उसके कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। वो कंपनी आज बंद होने के कगार पे है। एयर इंडिया बंद होने के कगार पे है, वो बिकने वाली है। एक एक करके पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है। आप राफेल का ही मुद्दा उठा करके देख लीजिए, हाल को जो है कोई टेंडर नहीं दिया गया और एक प्राइवेट कंपनी को, जो कंपनी आज के डेट में दिवालिया है, उस कंपनी को राफेल का टेंडर दे गया। हम समझते हैं कि अगर हम नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे? हम एलिगेशन लगा करके वेनेजुएला या नॉर्थ कोरिया का नाम लेकर के अपने देश की हालत से नहीं बच सकते हैं। देश को यदि हम मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा इकॉनमी बढ़ना चाहिए। और वो इकॉनमी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अमित शाह जी का के बेटे जय शाह की कंपनी का यदि कई गुना मुनाफा हो जाता है उससे देश का मुनाफा हो गया, ऐसा नहीं है। देश का मुनाफा तब पता चलेगा जब लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। लोगों का पर कैपिटा इनकम लगातार कम हो रहा है और ये कह रहे हैं कि इकॉनमी हमारी ग्रो कर रही है। देश के कुछ लोगों की कंपनी यदि बढ़ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ग्रो कर रही है। मैं डेटा के साथ आपको बता रहा हूँ कि जियो को यदि मुनाफा हो रहा है, डजंट मीन कि देश को मुनाफा हो रहा है। देश को मुनाफा तब होगा जब BSNL को मुनाफा होगा। अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, उसको मुनाफा हो रहा है और रेलवे को घाटा हो रहा है, मतलब देश को घाटा ज़्यादा हो रहा है और मुनाफा कम हो रहा है। आज के डेट में ये जो राष्ट्रवाद की बहस जिस तरीके से पुश की जा रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर आतंकवादियों का हमला होता था और कोई जवाब नहीं दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि हर वक्त जब हमारे देश पे हमला हुआ है, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप 47 का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, आप 65 का उदाहरण देख लीजिए, आप 71 का उदाहरण देख लीजिए। इनफैक्ट जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, आप कारगिल का उदाहरण उठा करके देख लीजिए। देश पे जब भी हमला हुआ है, देश के वीर सैनिकों ने उसका जवाब दिया है। इसका क्रेडिट जो है वो सरकार ऐसा नहीं है कि हमने पहली दफा जवाब दिया है। जवाब तो हमने पहले भी दिया है, सेना जवाब देती थी, सरकार उसका क्रेडिट ले रही है, मेकिंग इट सीम एज इफ जो आर्मी ने किया है वो सरकार ने किया है, ट्राइंग टू ब्लर द टू डिस्टिंक्शन। जवाब दीजिए कन्हैया का। तेजस्वी। Rahul, I really have to go. I have a campaign program to attend to now. Kindly excuse me. I just want to take 30 seconds to give my concluding remarks. Kanhaiya must realize that India is a civilian democracy where the calls for military action or not is decided by the civilian government and a civilian political establishment, unlike Pakistan where the army takes the call on what action to take or not. Therefore, the credit as well as the blame for the failure of any military action will finally lie at the civilian government in India. And if this government has shown spine for the first time, to reply to any enemies of the country in a manner that the enemies understand, that credit for that must definitely go to the government. And the Narendra Modi government has done a splendid job in ensuring the national security interests of this country are well protected. So Rahul, kindly excuse me, it was fascinating to talk to you and Kanhaiya. Kanhaiya, I wish you the very best again. Thank you so much. Okay, Kanhaiya, I'll take final comments from you. The government can claim that before this, the Indian government never responded in the way that we do now. When China intruded into Doklam, we went into Bhutan and stared the dragon in the face. We've sent a anti-satellite missile into space, proving ourselves to be a emerging space power.
We've sent the Air Force into Balakot, which had never been done. Even in Kargil, which you cited, Atal Bihari Vajpayee never gave the Air Force the permission to cross the line of control. So this government can say, yes, पिछली सरकारों ने जवाब दिया, पर हमने जो जवाब दिया वो ज्यादा जवाब दिया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया. कन्हैया कुमार. देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि जब तेजस्वी जी अपना क्लोजिंग कमेंट कर रहे थे, उस क्लोजिंग कमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन है. वो कह रहे हैं कि भारत में एक सिविलियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आर्मी क्या एक्शन लेगी, आर्मी क्या एक्शन नहीं लेगी. जो सक्सेस है उसके लिए भी गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया जाएगा और जो अनसक्सेस है उसके लिए भी गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाएगा. ये क्या कर रहे हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं. ये बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी तो ले रहे हैं, लेकिन जो पुलवामा में चूक हुई है उस चूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले रहे हैं. हमारा ये कहने का मतलब है कि इस देश में सेना पे कभी भी पॉलिटिक्स नहीं हुआ है और सेना पे कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. जब एक सिविलियन गवर्नमेंट है तो सिविलियन गवर्नमेंट ही सारा डिसीजन लेगी. अनफॉर्चुनेट ये है कि आप देख लीजिए कि इस देश में सेना पे राजनीति की जा रही है और तंग आकर के जो हमारे चुनाव आयोग ने कहा कि सेना की चर्चा कोई भी अपने पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान नहीं करेंगे. इससे हम लोगों को बचना चाहिए. रही बात सरकार ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि उसको लेकर के 2014 में जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को ही उठा करके देख लिया जाए. जो वादे उन्होंने स्वयं किए थे उसमें से कितने वादों को पूरा किया गया है. क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए पहुँचे? क्या करप्शन के चार्ज में जो लोग थे उनको जेलों में बंद किया गया? क्या इस देश में गरीबी कम हुई? क्या इस देश में नए इंडस्ट्रीज़ लगाए गए? क्या इस देश में किसानों के ऊपर हमला कम हुआ? क्या इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ? ये सारे वादे बीजेपी लेकर के आई थी, जिनमें से किसी भी एक वादा को पूरा नहीं किया गया है. और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि अपने डेवलपमेंट मॉडल को फेल होता हुआ देख करके, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए कि एक एक इंस्टीट्यूशन के जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया है. आरबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि नोटबंदी जो की गई उसमें हम लोगों का कंसेंट नहीं था और नोटबंदी को दुनिया के नोबेल लॉरिएट्स ने कहा कि वो एक ब्लंडर था, वो एक जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो भारत की इकॉनमी के लिए एक ब्लंडर था. तो जो इनका जो डेवलपमेंट मॉडल था उसका फेलियर है, ये बात इनको ही पता है. और यही कारण है कि 2014 में ये चुनाव लड़ रहे थे डेवलपमेंट के सवाल पे, 2019 में ये चुनाव लड़ रहे हैं नेशनलिज्म के सवाल पे. ये खुद ही डेवलपमेंट के सवाल को पीछे छोड़ दिए हैं. आप बीजेपी के किसी भी लीडर का भाषण उठा करके देख लीजिए, आज वो डेवलपमेंट मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं. स्वयं आप प्रधानमंत्री के भाषण को फॉलो कर लीजिए, वो आज के डेट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सेना, एयर स्ट्राइक, बालाकोट, इन चीज़ों की ही चर्चा करते हैं. जो भी आज के डेट में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए नेहरू जी को ब्लेम किया जाता है. और आज जो सरकार है वो सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है. एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ये जाते जाते इन्होंने कहा कि यूपीए 1 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, राइट टू एजुकेशन पास किया गया, मनरेगा को लागू किया गया. ये सारे वेलफेयर स्कीम जो हैं उन्होंने रूरल इकोनॉमी में खास करके मनरेगा ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया. माइग्रेशन कम हुआ, लोगों का बेसिक इनकम बढ़ा. और सबसे अच्छी बात, जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसका यदि झूठ आपको पकड़ना है तो जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, एक एक पॉलिसी पे आप उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, और आज जब वो पीएम हैं तब उस पॉलिसी को वो किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं उसको सुन लीजिए. मैं 2-3 उदाहरण बहुत जल्दी में गिना देता हूं. आधार का मोदी जी जब सीएम थे तो विरोध कर रहे थे, जब पीएम हैं तो उसको सबसे जरूरी योजना बता रहे हैं. एफडीआई का मोदी जी विरोध कर रहे थे, और आपको याद होगा जब कोका कोला बैन कर दिया गया, ये एक कारण था कि मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था. एफडीआई के मोदी जी खिलाफ थे. अभी जो कह रहे हैं कि हम एफडीआई जो है उसके बहुत बड़े समर्थक हैं, बड़े पैमाने पे एफडीआई जो है वो भारत में आया है. रियलिटी ये कहता है कि एफडीआई के तहत जितना पैसा हिंदुस्तान में आया है उससे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान का बाहर गया है. माइग्रेशन कम नहीं हुआ है. तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जीएसटी पे मोदी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए. जब वो सीएम थे तब क्या बोले थे और आज जब पीएम है तब वो क्या बोल रहे हैं. मैं समझता हूँ कि ये झूठ है. इससे
जनता को आगाह होना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए. Okay, I'm going to leave it over there. You've heard from the left, you've heard from the right. You decide who you think is right. But more importantly, what's quite clear over the last half an hour is that these are two young, articulate voices, and they represent in different ways different ideas of India, but they represent them powerfully to their supporters, and we wish these young leaders all the best. They have their campaigns to go back to. They've had a long day and they've joined us. We deeply appreciate that. We hope you enjoyed this clash of ideas. No cacophony, but strongly presented, highly articulate points of view on both sides of the ideological divide. Kanhaiya Kumar, Tejaswi Surya for joining us on this Young India debate. Thank you very much. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.